Section E of chemistry board examination will carry a 5-mark question, and normally the 5-mark question will have sub questions, either 3, 4 or 5, or even they will have a sub parts of it. So here is one of the question of 2024. You will have an idea what sort of question will be there. So the first question is, the alpha hydrogen of aldehydes and ketones are acidic in nature. So alpha hydrogen, what is the alpha hydrogen? The hydrogen which is present next to the carbonyl group. तो अगर हम aldehyde, so A में जो हमारा सब पार्ट है, that is A question is further divided into 2 sub parts. Similarly, B is divided into 2 sub parts, and then C is having a single question. So means there is a 1 mark for this one and 1 mark for this sub part. जो first A part है, it is having a 2 marks. 2 sub parts दिए हुए हैं. All together there are 5 questions which are divided into different parts, and then we are having the second question which are again divided into 2 parts, and 1 for each and 1 marks for the last one. So the alpha hydrogen of aldehydes and ketones are acidic in nature. Aldehyde, how we can write the aldehyde? That is CO, and one side H is present and one side R is present. Or you can either write like this, that CO and R and H. So ये क्या है? This is the aldehyde. This is the aldehyde, and how we can write the ketone? That is CO and R. The hydrogen present next to the carbon is known as alpha hydrogen. So that is acidic in nature. Why it is acidic? Because this carbonyl group is highly polar in nature, and it is having a more tendency to grab the electron from the nearest carbon. वो जल्दी से ले लेगा. So यहाँ पे हम लिख देते हैं कि due to the polarity of carbonyl group, it is कैसा है? Electrophilic in nature at carbon. जो carbon center है, that is the electrophilic, and due to polarity it will take the electron. That is why वो जो hydrogen है, it will leave the either aldehyde or ketone easily. So the question is, the alpha hydrogen of aldehyde and ketone are acidic in nature. So reason is due to the polarity of carbon group, it is electrophilic in nature at C. So the alpha hydrogen. So the alpha hydrogen is more acidic in aldehyde and ketone. Aldehydes and ketones. So second sub part of this is oxidation of aldehyde is easier than ketones. I mention or draw the structure of ये ketone है हमारे पास, और ये aldehyde है. We can easily see that in ketone the hydrogen is absent in the carbonyl जो group है उसमें hydrogen नहीं है. The carbonyl group is occupied by a bulky group from both sides. ये जो कार्बन है इसमें दोनों साइड पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं. Whereas in aldehyde the carbonyl carbon is having a small hydrogen on the one side. That is why यहाँ पे steric hindrance और the positive inductive effect is absent. तो हम यहाँ पे इसको आंसर कैसे लिख सकते हैं? ये फर्स्ट पार्ट है. Okay, I mentioned here the first part. यहाँ मैंने लिखा हुआ है. So how we will write the second? That is due to the presence of hydrogen in aldehydes
एल्डिहाइड्स में क्या है, हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड्स इन और एट वन साइड of the carbonyl group which can be easily removed or the electrophilic carbon is easily available for the oxidation reaction. So जो कार्बोनिल कार्बन है वो, क्योंकि एक तो पोलैरिटी होती है, ये जो बॉन्ड है CO बॉन्ड जो है ये हाईली पोलर इन नेचर है. इफ वी विल सी दिस बॉन्ड, तो यहाँ पे एज ऑक्सीजन इज हैविंग अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it will grab the electron towards itself and attain a partial negative charge, and this carbon will attain a partial positive charge, and due to the resonance this is get a little stabilizer. यहाँ पे stabilization हो जाएगा, stable हो जाएगा, and in case of this aldehyde the hydrogen is present at the one side, और इसके इस तरह से जो कार्बन है it is easily attack by the coming nucleophile, वो easily उस पे अटैक करेगा. But in case of ketone is having a two bulky groups, and this electrophilic carbon is not easily available due to steric hindrance, and हमें सिर्फ aldehyde ही बोला है, oxidation of aldehyde is easier than, तो हम लिख सकते हैं oxidation, whereas due to steric hindrance it is difficult, or we can say it is difficulty, it is not easy in case of ketones की केस में easy नहीं होगा. So here is the answer for the first जो account for the following है, A part का हमने आंसर लिख दिया, due to polarity and due to steric hindrance ketones are not easily available for the oxidation, and whereas due to the presence of small hydrogen at one side of carbonyl group the carbon is easily available for the nucleophilic attack. So let's move to the next or second question. That is second question जो है that is from the पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही हमें पूछ लिया है. We have to be answer. What is the answer for that question है? Arrange the following. Arrange करना है in decreasing reactivity towards the nucleophilic addition reaction. So which will be more difficult for the addition, as I just said कि जो ketones है they are little difficult है ना, वहाँ पे थोड़ी difficulty हो जाएगी. और so हाँ aromatic aldehyde है तो वहाँ पे जो हमारी aromatic ring होती है that is more stable due to the वहाँ पे रेजोनेंस वर्क करता है. सो अगर हम इसे अरेंज करें, हमारे पास पहला क्या है, दैट इज प्रोपेनल एलिफेटिक एल्डिहाइड है. देन वी आर हैविंग द एसीटोन है, मींस एलिफेटिक कीटोन अवेलेबल है. देन वी आर हैविंग द बेंजेल्डिहाइड है. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, जैसे CH3 CH2 COH. I made this one just to show how and why, which one will be give you the more easy nucleophilic addition reaction. Acetone है, इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे that is CH3 COCH3. We can see here the carbonyl carbon is covered from both sides.
Here the carbonyl carbon is having a small hydrogen at one side. बेंज़ल्डिहाइड को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, बेंजीन रिंग बनानी है और बेंजीन रिंग पे हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना। एंड ड्यू टू द रेजोनेंस यहाँ पे जो स्टेबल है ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो अगर हम अरेंज डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी डिक्रीज करना है तो सबसे ज्यादा जो है वो प्रोपेनॉल हमारा रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई है, यहाँ हम कहेंगे कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ पे दो वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी वर्क करता है और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी अवेलेबल है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस और यहाँ पे जो है वो रेजोनेंस वर्क कर जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। सो सबसे ज्यादा तो यही है। तो अगर हम इनको अरेंज करें तो हम कैसे अरेंज करेंगे, प्रोपेनल जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा एंड देन एसीटोन रिएक्ट करेगा, क्योंकि फिर भी वो एरोमेटिक है, वहां ज्यादा स्टेबिलिटी है। एंड देन एट लास्ट वी आर हैविंग दी बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड सबसे लेट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जाएगा, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ड्यू टू द रेजोनेंस, तो इट विल नॉट गिव दैट रिएक्शन इजीली। एडिशन जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे, तो क्योंकि ऑक्सीजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव आउट करेंगे बाहर की तरफ। देन द सेकेंड जो सब पार्ट है दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। एंड हमें क्या क्या दिया है, प्रोपेन दिया है मीन्स हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है, इथेनॉल दिया है मीन्स एल्डिहाइड भी है, डाइमिथाइल ईथर मतलब ईथर भी है एंड प्रोपेनॉल। सो प्रोपेनॉल मिल गया, ठीक है प्रोपेनॉल। यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है इसका दैट इज हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में करना है। कौन कौन है यहाँ पे, प्रोपेन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, फिर हमारे पास है इथेनॉल, इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड आ गया है, फिर डाइमिथाइल ईथर, ईथर आ गया है एंड देन वी आर हैविंग प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अब हम अगर ध्यान से देखें तो जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर हैविंग दी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ये अल्कोहल है, ये ईथर है, ये एल्डिहाइड है, ये हाइड्रोकार्बन है। इन सभी में अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा एंड बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो अल्कोहल सबसे ज्यादा। उसके बाद जो इथेनॉल है यहाँ पे ड्यू टू पोलैरिटी इसका भी बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से भी और डाइमिथाइल ईथर से भी ज्यादा होगा, क्योंकि डाइमिथाइल ईथर में पोलैरिटी होती है बट इट इज लेस एज कंपेयर टू कार्बोनिल कंपाउंड्स ना, स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होती है। सो डाइमिथाइल ईथर इथेनॉल से भी कम होगा और प्रोपेन जो हाइड्रोकार्बन है वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सो अगर मैं इसको अरेंज करूं सबसे ज्यादा जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज द प्रोपेनॉल एंड देन वी आर हैविंग द इथेनॉल। यहाँ पे पोलैरिटी के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डाइमिथाइल ईथर से, क्योंकि डाइमिथाइल ईथर में पोलैरिटी होती है बट इट इज लेस एज कंपेयर टू द एल्डिहाइड कीटोन्स। एंड जो प्रोपेन है हाइड्रोकार्बन इसमें कोई भी यहाँ पे वेंडर विलास फोर्सेस है विच आर द वीक फोर्स, उसको तो बहुत जल्दी हम बॉयल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि बहुत वीक होता है। यहाँ पे पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी के कारण यहाँ पे ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे ये लेस पोलार होते हैं इसीलिए लेस पोलार, तो एल्डिहाइड से तो इसका कम ही होगा।
और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करेगी, intermolecular hydrogen bonding. So that is why the alcohols are having the highest boiling point: propanol, ethanol, dimethyl ether, and the last one is propane. Propane, because यहाँ पे van der Waals forces हैं which are the weakest force of attraction. So I wrote the reason why we choose propanol as the highest one, then ethanol, and then dimethyl ether, and then the propane. Okay, so the last question जो है that is, सारे क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही है from different units. Till now we are having the most question from the aldehyde chapter, and see the pattern how the question will come in 5 marks or in sections E. Give the simple chemical test to distinguish between benzoic acid and benzaldehydes. दोनों aromatic carbonyl compounds हैं. One is benzoic acid. So how we will write the benzoic acid? सी पार्ट का आंसर दे रहे हैं, इसमें एक ही पार्ट है, कोई सब पार्ट नहीं है. बेंजोइक एसिड, दिस इज द बेंजोइक एसिड, एंड हाउ वी विल डिफर इट फ्रॉम द बेंजल्डिहाइड. अब बेंजल्डिहाइड को कैसे इससे डिफरेंट करेंगे, दैट इज COH. ठीक है, इन दोनों को कैसे डिफरेंट आपने डिफरेंट करना है. वन जो टेस्ट है हम कर सकते हैं, देखो ये एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और हम इसको किससे रिएक्ट करवा देंगे, चाउलेंस रिएजेंट से, और जो एसिड है इट विल नॉट रिएक्ट. तो केमिकल टेस्ट, एक केमिकल टेस्ट जो हमारे पास है, केमिकल टेस्ट हम करें, केमिकली डिफरेंशिएट करना है ना हमने, तो केमिकल टेस्ट है दैट इज दी चाउलेंस टेस्ट, और जिसे हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट. कौन देगा दोनों में से, सिल्वर मिरर टेस्ट. दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं व्हिच विल गिव आइदर दिस और दैट. ऑब्वियसली एल्डिहाइड विल गिव द सिल्वर मिरर टेस्ट और टाउलिन टेस्ट. यहाँ पे सिल्वर कलर अपीयरेंस आ जाएगा व्हेन दिस विल रिएक्ट विद द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. सो एंड benzoic acid will not give this test, ये टेस्ट benzoic acid नहीं देगा. तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेते हैं, दैट इज बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड प्लस चाउलेंस reagent ammonical silver nitrate and silver mirror formed. तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, दैट इज हम बेंजल्डिहाइड को ऐसे ही बना लो, एंड इवन आप लिख भी सकते हो अगर C6H5 आपने लिखना है, प्लस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिख लो AgNH3 ट्वाइस, एंड बीइंग अ प्लस साइन OH इसके ऊपर सॉरी नेगेटिव साइन minus and 2, and what we will get, that is benzaldehyde will give you the benzoic acid में convert हो जाएगा, and silver mirror सबसे पहले तो वही silver mirror ही आप शो करिए कि silver mirror बन गया है, प्लस हम यहाँ पे benzoic acid शो कर देंगे. this is what we are getting here, and then ammonia बन जाएगा यहाँ पे 224 plus water molecule. So this silver mirror will appear, और जो हमारा benzoic acid है it will not give the test. benzoic acid में आप लिख भी सकते हैं that is C6H5COOH plus ammonical silver nitrate लिख लो, that is AgNH3 twice plus OH minus, and no test or no silver mirror will be formed. So this is the test how we can differentiate both
ये एल्डिहाइड है और ये एसिड है, और ये कौन सी एसिड है, दिस इज द बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है और ये बेंजेल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड। एक और टेस्ट आप इसको दे सकते हैं, ये टेस्ट बेंजेल्डिहाइड दे रहा है। दूसरा टेस्ट हम ऐसा लिखेंगे जो एसिड देगी और एल्डिहाइड नहीं देगा। ये टेस्ट एल्डिहाइड ने दिया है, एसिड ने नहीं दिया है। दूसरा मैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लिखूंगी जो कि बेंजोइक एसिड देगा और एल्डिहाइड नहीं देगा। तो इट्स अप टू यू, if in your board examination this question will come either for 3 marks or 2 marks, you can either choose sodium bicarbonate test or silver mirror test। silver mirror test को एल्डिहाइड देता है, एसिड नहीं देता, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वो एसिड देगा, एल्डिहाइड नहीं देगा। सो एंड बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड्स बट यू कैन केमिकली डिफरेंशिएट बोथ। तो यहाँ पे केमिकल टेस्ट जो पहले हमने लिखा था टाउलेट टेस्ट, और अभी हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लिख लेते, that is sodium bicarbonate test, that is reacting NaHCO3 के साथ रिएक्ट करवाना है। अब मैंने बोला कि एसिड देगा तो हम क्या करेंगे, पहले बेंजोइक एसिड को लिख लो। बेंजोइक एसिड को जैसे ही आप लिखोगे you will get the sodium salt of benzoic acid, along with the effervescence will be come, that is carbon dioxide, जिसे chemically हम टेस्ट कर सकते हैं। if we are taking the burning candle near to it and it will be, वो बंद हो जाएगी and carbon dioxide is coming out। and यहाँ पे हम लोग NaHCO3 लिख लेंगे और इससे अगर हम रिएक्ट करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हो रहा है, तो here we are getting the, आपने इस तरह से सेम पहले बेंजीन रिंग बनाओ, COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड आ गया हमारे पास, सोडियम बेंजोएट आ गया, एंड प्लस वी आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे ज्यादा हमें दिखाने की या लिखने की जरूरत है, दैट इज व्हाई टेस्ट इज कमिंग, एंड देन वी आर हैविंग द water molecule will, yes, so this is the test given by the acid and this will not given by the benzaldehyde। benzaldehyde को भी ऐसे लिख लो, COH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट करवा दो एंड हम लिखेंगे नो रिएक्शन। तो पहले वाले में एसिड कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, अभी बेंजाइड कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, सो इट्स अप टू यू, यू कैन चूज एनी रिएक्शन एंड यू कैन राइट any। don't over attempt, you will get the marks if you are writing correct and what is asked, so you can get 1 marks for this। I hope you got some ideas how to solve and what type of question will come in section E। so subscribe my channel for more videos and मिलते हैं next video में, till then you take care।